Good morning. Today we discuss on agriculture, chemistry, English medium topics is urea fertilizer. Urea fertilizer. First is chemical formula is NH2CO NH2 urea is nitrogenous fertilizers, nitrogenous fertilizer, simple fertilizer. What is simple fertilizer? Fertilizer which supply only one primary nutrients is called simple fertilizer. Urea, also known as organic fertilizer, because urea having carbon compound in their structure, so urea is also called organic fertilizer. This fertilizer having nitrogen as amide form. Urea is highly useful fertilizer in nitrogenous fertilizer. जितने नाइट्रोजन फर्टिलाइजर्स का उपयोग होता है उनमें सबसे ज़्यादा कौन से फर्टिलाइजर्स का उपयोग होता है? वो होता है यूरिया का. यूरिया कंटेन नाइट्रोजन 46%. फर्स्ट इज कंपोजिशन. फर्स्ट कंपोजिशन moisture content maximum is 1%. nitrogen content minimum is 46%. biurate maximum 1.5%. This is composition of urea fertilizers. Next, properties. Urea is white crystal ग्रेनल। यूरिया कैसा होता है?
सफ़ेद दानेदार रूप में उपलब्ध होता है। इजीली soluble in water, easily absorb moisture, this is properties of urea fertilizer. After it, third point is soil reaction. Third reaction in soil. First is when we apply urea fertilizer in soil, then contact to soil water and dissolve and make a mediator compound which known as ammonium carbonate. When apply urea in soil, then react with soil water and formed ammonium carbonate NH2 CO NH2 H2O formed ammonium carbonate. This process is catalyzed by urease enzyme when first urea fertilizer apply in soil, then it comes with soil water also absorb humidity and convert into ammonium carbonate, because in urea nitrogen is available amide form which is not available for plants. So firstly urea converted into ammonium carbonate. This reaction catalyzed by urease enzyme. This intermediate compound ammonium carbonate split ammonium and carbonate ions this ammonium ions ammonium ion some crops absorb
नाइट्रोजन एज अमोनियम फॉर्म लाइक पेडी लॉस बाय डिफ्यूजन एज अमोनिया गैस अमोनियम आयन कन्वर्टेड इनटू नाइट्रेट आयंस अमोनियम कार्बोनेट किस में टूट जाता है? अमोनियम और कार्बोनेट आयनों में टूट जाता है, जिसमें से इस अमोनियम आयन को कुछ जो फसलें होती है वो ग्रहण कर लेती है, एब्जॉर्ब कर लेती है, जैसे राइस होता है। कुछ अमोनियम का अमोनिया गैस के रूप में डिफ्यूजन हो जाता है, विसरित हो जाता है और लॉस हो जाता है। कुछ अमोनियम क्या होता है, नाइट्रेट रूप में कन्वर्ट हो जाता है, जिसको प्लांट्स ग्रहण कर लेते हैं। नाइट्रेट फॉर्म क्या है? अवेलेबल फॉर प्लांट्स। दिस प्रोसेस ammonium to nitrate conversion is catalyzed in 2 steps. NH4 plus first converted into NO2 H2O नाइट्रोसोमोनास इन अमोनियम टू नाइट्रेट कंजर्वेशन. This process is complete in 2 steps. First step, ammonium converted into nitrite, and second step, nitrite converted into nitrate form. First step, ammonium converted into nitrate, अमोनियम नाइट्राइट एंड फोर निसेंट हाइड्रोजन फर्स्ट स्टेप में क्या होता है, जो अमोनियम आयन है वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, नाइट्राइट आयन में कन्वर्ट हो जाता है। ये जो प्रोसेस होती है ये कौन से बैक्टीरिया के द्वारा कंप्लीट होती है, नाइट्रोसोमोनास बैक्टीरिया के द्वारा, नाइट्रोसोमोनास बैक्टीरिया। सेकेंड स्टेप में क्या होता है, 2NO2 NO3 माइनस
which is nitrate form. This process complete by nitrobacter bacteria. This process complete 1 week. यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है, अपने अमोनियम को नाइट्राइट में कौन सा बैक्टीरिया कन्वर्ट करता है, नाइट्रोसोमोनास बैक्टीरिया। और नाइट्राइट को नाइट्रेट में कौन सा बैक्टीरिया कन्वर्ट करता है, नाइट्रोबैक्टर कन्वर्ट करता है। इस नाइट्रेट का उपयोग प्लांट्स कर लेते हैं, अवेलेबल फॉर प्लांट। इसी प्रोसेस में अपने यहाँ पे क्या निकलते हैं, नवजात हाइड्रोजन निकलते हैं। ये नवजात हाइड्रोजन क्या करते हैं, जो अपने सॉइल है उस जो सॉइल पार्टिकल्स है वहाँ पे एब्जॉर्ब हो जाते हैं और सॉइल को किस में कन्वर्ट कर देते हैं, एसिडिक नेचर में कन्वर्ट कर देते हैं। दिस हाइड्रोजन आयन soil collide plus convert into hydrogen and acidic soil. Means when we apply urea fertilizer continues, then soil converted into acidic soil, acidic nature. Because urea nature is acidic nature, urea effect in soil is acidic effect. रिएक्शन इन सॉइल मृदा में कैसे कार्य करता है, इसको शॉर्ट रूम में अपने को कैसे ध्यान में रखना है। सबसे पहले जब अपन मृदा में यूरिया की सप्लाई करते हैं तब क्या होता है, वातावरण के द्वारा मॉइस्चर ग्रहण कर लेता है और जो मृदा में जल उपस्थित है उससे क्रिया करके और एक इंटरमीडिएट कंपाउंड बनाता है। वो कौन सा है, अमोनियम कार्बोनेट। अमोनियम कार्बोनेट किस में स्प्लिट हो जाता है, अमोनियम और कार्बोनेट आयंस में स्प्लिट हो जाता है। जो अमोनियम आयंस है इसका उपयोग हो जाता है फसलों के द्वारा, जैसे पेडी, या इसका डिफ्यूजन के द्वारा लॉस हो जाता है अमोनियम गैस के रूप में, या जो अमोनियम आयंस है वो कन्वर्ट हो जाता है किस में, नाइट्रेट आयंस में। तो अमोनियम आयन 2 स्टेप में कंप्लीट होता है, कन्वर्ट होता है नाइट्रेट रूप में। फर्स्ट स्टेप में क्या होता है, अमोनियम आयंस नाइट्राइट आयंस में कन्वर्ट होता है, जिसके द्वारा क्या होते हैं, नवजात हाइड्रोजन रिलीज होते हैं। और ये प्रोसेस किसके द्वारा कंप्लीट होती है, नाइट्रोसोमोनास बैक्टीरिया के द्वारा कंप्लीट होती है। सेकेंड स्टेप में क्या होता है, ये नाइट्राइट जो आयन होता है ये नाइट्रोबैक्टर बैक्टीरिया के द्वारा किस में कन्वर्ट हो जाता है, नाइट्रेट फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है, जिसको प्लांट आसानी से ग्रहण कर लेते हैं। इसके बाद में फोर्थ, बाईयूरेट वेहन फॉर्मेशन ऑफ यूरिया। जब यूरिया का निर्माण किया जाता है फैक्ट्रीज में तब क्या होता है, टेम्परेचर अधिक होने पे यूरिया के 2 मॉलिक्यूल्स अणु मिलके और
एक नया मॉलिक्यूल्स बनाते हैं जिसको कहा जाता है बाईयूरेट। वेहन टेम्परेचर इंक्रीज ड्यूरिंग यूरिया फॉर्मेशन, किसका फॉर्मेशन हो जाता है? NH2CO NHCO NH2। दिस इज बाईयूरेट। कंटेन 1.5%। वेहन increase 1.5%, then it is toxic effect। बाईयूरेट क्या होता है? यूरिया निर्माण के दौरान जब टेम्परेचर इंक्रीज हो जाता है अराउंड 150 डिग्री सेल्सियस, मोर देन 150 डिग्री सेल्सियस हो जाता है, तब क्या होता है? यूरिया के दो अणु मिलके और एक नया कंपाउंड बनाते हैं जिसको जानते हैं बाईयूरेट के नाम से। सामान्यतः यूरिया में बाईयूरेट परसेंट कितना होता है? 1.5%। जब 1.5% से ज़्यादा इंक्रीज हो जाता है तो क्या होता है? वो विषालु प्रवृत्ति का हो जाता है। नेक्स्ट पॉइंट, इफेक्ट ऑफ क्रॉप्स। इफेक्ट ऑन क्रॉप्स। फर्स्ट, इजीली यूजफुल फर्टिलाइजर, suitable for all crops, suitable for foliar या foliage spray, टू %। सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है पर्णीय छिड़काव, फोलियर एप्लीकेशन, फोलियर स्प्रे में यूरिया का कितना % घोल काम में लिया जाता है? तो कितना काम में लिया जाता है? 2% सॉल्यूशन उपयोग में लिया जाता है फोलियर एप्लीकेशन के लिए, फोलियर स्प्रेइंग करने के लिए। यूरिया अप्लाई हाफ डोज एट सोविंग टाइम एंड हाफ डोज split in 2 parts at growing stage of crops and at flowering and fruiting stage। मीन्स क्रॉप्स को जितना यूरिया सप्लाई करना है उसको 2 भागों में बांट लिया जाता है। हाफ डोज तो बुआई करने के समय दी जाती है और जो हाफ डोज रह जाती है उसको 2 बराबर भागों में बांट के एक पार्ट्स को तो जब
ग्रोइंग स्टेज आती है, क्रॉप्स की वृद्धि करने वाली स्टेज आती है, तब अप्लाई किया जाता है। और जो रिमेनिंग पोर्शन रह जाता है उसको या तो फ्लोवरिंग स्टेज पे या फ्रूटिंग स्टेज पे अप्लाई किया जाता है। यूरिया treated with neem wax for slow releasing nitrogen, which known as कोटेड यूरिया। यूरिया को क्या करते हैं, निर्माण के समय नीम के द्वारा या वैक्स के द्वारा क्या करते हैं, उसको लेपित कर देते हैं, ट्रीटेड करते हैं, जिसके कारण क्या होती है, जो यूरिया में नाइट्रोजन जो एलिमेंट्स होता है वो धीरे धीरे प्लांट्स को उपलब्ध होता रहता है और अधिक समय तक प्लांट्स को क्या अवेलेबल रहती है, नाइट्रोजन अवेलेबल होने लगती है। तो ऐसे यूरिया को कहा जाता है कोटेड यूरिया के नाम से जानते हैं। इफेक्ट क्या होगा, इसको आसानी से उपयोग में ले सकते हैं। इसी के साथ में और ध्यान में रखना, पेस्टिसाइड आल्सो यूज्ड विद दिस फर्टिलाइजर, मीन्स इस उर्वरक के साथ में पेस्टिसाइड्स का उपयोग भी आसानी से कर सकते हैं। सभी फसलों के लिए सूटेबल है। फोलियर स्प्रे के लिए सबसे अच्छा उर्वरक है यूरिया। कितना परसेंट काम में लेते हैं, गोल सॉल्यूशन 2% काम में लेते हैं। यूरिया को 2 पार्ट्स में डिवाइड करके उपयोग में लिया जाता है। यूरिया को जो नाइट्रोजन कंटेंट होता है यूरिया में, उसको धीरे धीरे उपलब्ध करवाने हेतु क्या करते हैं, नीम वैक्स इत्यादि के द्वारा क्या करते हैं, उसको लेपित कर देते हैं, कोटेड कर देते हैं, जिसको कहा जाता है कोटेड यूरिया। इन दिस लेक्चर वी डिस्कस अबाउट यूरिया फर्टिलाइजर। One is important question, Wöhler synthesis. Wöhler synthesis is method of यूरिया सिंथेसिस, मीन्स इन केमिकली फॉर्म यूरिया का संश्लेषण कौन से मेथड से किया जाता है, तो वोलर संश्लेषण, वोलर सिंथेसिस मेथड से किया जाता है। इन नेक्स्ट लेक्चर वी डिस्कस अबाउट एसएसपी, सिंगल सुपर फॉस्फेट, अमोनियम सल्फेट,